How to join? Yes, sir. He will join at 11:50, I believe, sir. 11:50. Yes. Okay. So we already have some participants, I think. Yes, sir. We have. Mm-hmm. So we have 46 participants right now. Okay. Yes, sir. नमस्कार। हाँ आकाश जी, क्या हाल है? ठीक हो? जी सर, मैं ठीक हूँ सर। चल बहुत बढ़िया। सर स्क्रीन पे हमारे प्रोफेसर हाँ नमस्ते रमन जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो? ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया। Thank you very much for coming to this webinar. We are really I am really thankful that you have given a chance to meet these students. Thank you, I sir. am remembering my old days when I was a student. okay. But we didn't get chance to talk on a video conference. Yeah. So even we are getting chance right now, no? Yes. Okay. Now the technology has been changed. We used to tour the states. Now the world is used digital प्रवास. आपका डिजिटल प्रवास शुरू हो गया है. Yes, चलो. So we can start now. Yeah, Akash. Okay. Good morning to one and all present here. Respected Professor in charge, sir, all my colleagues and participants. Today we have organized this webinar to discuss on the topic of importance of fundamental duties in the Indian society. Before going in deep with the topic, let me brief about it first. The Constitution of India provides for the fundamental rights as well as the fundamental duties. Originally, it did not contain fundamental duties. These were added by the way of 42nd Amendment Act of 1976 upon the recommendation of Swan Singh Committee. People can go directly to Supreme Court as well as the High Court in the violation of their fundamental rights. This means the fundamental rights are always enforceable, whereas the fundamental duties are not as such enforceable. Citizens are morally obligated to perform these duties. So what are the importance of these duties in our society? To enlighten us, we have with us Shri Avinash Rai Khanna ji. Sir is the National Vice President of BJP. Sir holds the position of Chief Patron, Paralympic Association of India, and also the Vice Chairman of Indian Association of Parliamentarians on Population and Development. Sir is the former Member of Parliament and was also the Member of Legislative Assembly of Punjab. Sir is the former member, Punjab State Human Rights Commission, and also the former chairperson of Indian Red Cross Society. In the academics, Sir has also authored following books: Ek Sankalp to Save Water, Samaj Chintan, and Anubhav. Sir has been awarded Doctorate of Literature last year for his welfare activities in the field of humanities. Now, I would like our professor in charge, Sir, Professor Dr. Raman Mittal, to please give the welcome address. Thank you very much, Akash ji. Respected Shri Avinash Rai Khanna ji, my colleagues and students and other participants. We are very glad to organize this webinar on the aspect of duties. Friends, at birth, the existence makes little demands on the child. As his capacity, his insight, and his understanding develops, the existence makes more demands on the child. The existence wants his self-expression and self-assertion make no violence to others and contribute to the welfare of others. When a child is born, he has all the human rights, but the society does not cast any duty onto him. When a child is born, he is dependent on his parents for everything. But when he grows up, he realizes his duties. Or we can also say that when a child realizes his duties, he can be said to have grown up. Therefore, it is the awareness about one's responsibilities that makes a man mature. Similarly, when a group collectively becomes alive to its duties, we can say that it has become a society.
The only meaning of civilization is the realization that someone else is there apart from you. So I'm reminded of, as we are talking about duties today, I'm reminded of a small story. There was a great emperor in India. His name was Akbar. And he has a wise counsel by the name of Birbal. Akbar was particularly fond of white swans. They are the whitest in the world, and they are found in Kashmir. So Akbar had his capital somewhere near Agra. So he wanted to bring those white swans to Agra, but it was very difficult. Those days, the transportation was not the same as we have it today. So it was very difficult, but he was so fond that he asked his councils to make any kind of arrangements so that those white swans could be brought to Agra, to his capital. Well, he sent his persons there and they were successful, and they were returning with a dozen white swans. So news reached the emperor that before dawn, the swans would be reaching the capital. So he wanted to give the swans a warm welcome, a very grand welcome, a welcome of its own kind. So he held a meeting that night and expressed his desire that he would like to welcome those white swans with milk instead of water, because they had to be kept in a pond. So the pond should be filled with milk. But Birbal, his wise counsel, said that in this hour of night, from where can we procure milk? It is very difficult. But Akbar said, no, we want milk. We would like to welcome the swans with milk only. And it's easy, he said. We'll ask every citizen to bring a ball of milk and put it in the pond. So by morning, the pond would be filled with milk. So an announcement was made. And because everybody would have some milk at their home, so people were coming with balls. And throughout night, people poured in a bowl by bowl, and the pond was almost full. The swans arrived before dawn, but when morning happened, everybody was surprised. There was no milk in the pond. What happened? On inquiry, it was found that all the citizens of the city, they were asked to pour just a small bowl of milk into the pond, but everybody thought that, well, there are others, they would be pouring. What if I do not pour my own milk? I will put only water instead of milk. So nobody will be able to find out whether I have put milk or water. But see what happens. This is the state of society. This is the state of our society. See, society can be analogized as the situation of a pond. You get what you pour in. So your duties are what you pour in, you offer to the society. That is your offering to the society. And your rights are what you get in return. Nations or societies that are founded on duties survive more than nations that are right-centric. Independence means being responsible for one's acts. In Hindi, there are two words, Swachandata and Swatantrata. While both mean freedom, the former is freedom without any bondage, and the latter means freedom with responsibility. So only that freedom we all cherish, that is the greatest value to cherish for a human being. But if we are alive to our freedom, we have to be alive to our responsibilities, our duties as well, because freedom cannot simply exist without our responsibility. So that is in these little words, I would like to welcome once again our guest speaker, Shri Avinash Rai ji. And thank you, sir, once again, and over to you. डॉक्टर रमन जी और आकाश जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं
जो आपने कहानी से बात को एक अच्छा मोड़ दिया है, मैं भी अपनी बात एक कहानी से शुरू करना चाहूंगा कि क्योंकि जब कोई कहानी सुना के बात होती है तो शायद उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा रहता है। हम ड्यूटीज की बात करते हैं, कई बार मन में ना बात आती है कि अगर मैं ये कर लूं तो 130 करोड़ लोगों में इसका इम्पैक्ट क्या है। अगर मैं ठीक हो गया तो 130 करोड़ की पॉपुलेशन में क्या उसका फर्क पड़ता है। तो उसके लिए मेरी एक सबसे प्यारी कहानी है जो जिंदगी में मेरे टीचर ने मुझे सुनाई थी, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि अपने ढंग से आप लोग भी इस कहानी को याद रख के सुना सकते हैं। एक बार एक जंगल में आग लगी हुई थी, तो सभी लोग उस जंगल की आग को बुझाने लगे हुए थे। अगर जंगल की आग फैलती है तो गांव में आ जाएगी, लोगों का नुकसान भी होगा। तो कोई रेत, कोई मिट्टी, कोई पानी लाकर उस जंगल की आग को बुझा रहा था। अचानक एक चिड़िया आई, उसने देखा कि इस जंगल की आग में मेरे साथी पशु पक्षी सड़ जाएंगे, तो मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं भी इस जंगल की आग को बुझाने का काम करूं। वो क्या करती, उड़ती चोंच में पानी भरती, आके उस जंगल की आग में फेंक दी। जब शाम को आग बुझ गई तो सब लोग इकट्ठे हुए, एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सब लोग एक दूसरे की प्रेस करने लगे। देखिए, आप बहुत पानी लेके आए, आप बहुत रेत लेके आए, आप बहुत मिट्टी लेके आए, तो आपने वो कुछ जो दरख्त थे उसको काट दिया, इसके कारण जो है वो आग बुझी। तो एक शरारती आदमी उस मीटिंग में था, वो चिड़िया भी उस मीटिंग में बैठी थी। तो किसी ने मजाक में उस चिड़िया को पूछा, ये चिड़िया बता, तेरे 2 बूंद पानी डालने से इतने बड़े जंगल की आग बुझ सकती थी? तो चिड़िया ने जवाब दिया कि मुझे भी मालूम है कि मेरे 2 बूंद पानी डालने से इस जंगल की आग नहीं बुझ सकती, लेकिन जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरी गिनती आग लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में की जाएगी। तो हम सबको आग बुझाने वाले बनना है। इस देश में बहुत सी समस्याएं हैं, हर रोज हम उन समस्याओं को फेस करते हैं। और अगर मैं ये सोच लूं एज ए इंडिविजुअल कि मुझे तो कुछ ना कुछ इस देश और समाज के लिए करना है, तो उसका इम्पैक्ट अपने आप जरूर पड़ेगा। इस बात को आगे ले जाते हुए, क्योंकि आज का टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए है टुवर्ड्स सोसाइटी। देखिए, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। दिन है तो रात है, पाप है तो पुण्य है, सूरज चढ़ता है तो रात को चांद भी आता है। तो इस तरह 2 पहलू, एक सिक्के की भी 2 पहलू, दुख है तो सुख है। अगर 2 पहलू हैं तो इसी तरह अगर राइट्स हैं तो उससे ज्यादा ड्यूटीज हैं। मैंने, जब मैं ह्यूमन राइट कमीशन का मेंबर था, आपने मेरे परिचय में बताया, तो मैंने एक चीज उसमें असेस की, समझी, एक्सपेरिमेंट भी किया उसका। ह्यूमन राइट वॉलेशन क्यों होती है? वो इसलिए होती है जब हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते। अगर हम ड्यूटी परफॉर्म करना शुरू कर दें तो जो राइट्स वॉल्यूशन है वो खत्म हो जाएगी। वो किसी के राइट्स के ऊपर हम वॉलेट नहीं कर सकते। तो ड्यूटीज क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? मैंने अभी कॉन्स्टिट्यूशन को निकाल के रखा है, क्योंकि आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप किसी बात को, अच्छी बात भी है, एविडेंस के साथ ही मानेंगे कि अगर एविडेंस है तो लॉ जज ये कहेगा हाँ आपकी बात ठीक है। तो इसीलिए मैंने अपने सामने अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खोल के रखा है। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? 11 ड्यूटीज इसमें कही गई हैं, लेकिन जिस ड्यूटी की मैं आज बात करना चाहूंगा वो आज के माहौल में, आज के वातावरण में, आज की जो देश की सिचुएशन है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कारगर है। वो क्या है? टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हम देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आज क्या आह्वान है? आज कोरोना को लेकर भी आह्वान क्या है? पहले है अपने आप को बचाना, फिर कुछ काम दिए गए हैं वो करने, वो ड्यूटी है। अपने आप को कैसे बचाना? जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो आपने बहुत बार सुनी है, लेकिन क्योंकि इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है, वो बात भी आपको मैं बताना चाहूंगा। वो बात है कि अपने आप को कैसे बचाना।
3-4 काम आपके जिंदगी के हिस्सा बन जाएंगे। पहला काम कि आपको किसी से शेक हैंड नहीं करना, हाथ नहीं मिलाना, फिर हग करके नहीं मिलना, और बार बार अपना हाथ साबुन से या सैनिटाइजर से धोना। अगर आप बाहर निकल रहे हो तो अपना मुंह फेस कवर के साथ ढक के रखना। अगर आपको दिखाई दे कहीं भीड़ है तो वहां नहीं जाना। ये प्रिकॉशन है, मुफ्त का इलाज है कोरोना का, जिसके लिए आपको बार बार कहा गया है। तो आप इस बात को जरूर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और अपनी ड्यूटी समझें कि मैं बाकियों के लिए भी ये काम करूंगा। दूसरा काम करने के लिए क्या कहा गया है, बहुत से काम थे, लेकिन जो आज की परिस्थिति में जिस काम के लिए प्रेरणा दी गई है वो क्या है? सबसे पहले वो है कि आपके नजदीक, आपके मोहल्ले में, वार्ड में, आपके यूनिवर्सिटी के पास, आपके हॉस्टल के पास क्या कोई बुजुर्ग आदमी या कोई बुजुर्ग कपल तो नहीं रह रहे, जिनके बच्चे बाहर हैं, जिनके बच्चे नौकरी करते हैं, आर्मी में हैं, विदेश में हैं? अगर हैं तो उनकी क्या जरूरत है, मैं जाके पूछ सकता हूँ क्या? आप जाएंगे तो डेफिनेटली बताएंगे कि बेटा हमारे पास पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन आज के हालात में हम बाहर नहीं निकल सकते। कहा गया है कि आपको बाहर नहीं निकलना। क्या हमारे मेडिसिन आप कभी ला सकते हो? क्या कभी फूड की जरूरत पड़ती हो, ला सकते हो? अगर आप एक परिवार के मेंबर की तरह उस बुजुर्गों के साथ खड़े होंगे तो डेफिनेटली आपको एहसास होगा कि शायद मुझे आप अपने दादा दादी की सेवा करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज परमात्मा ने मुझे मौका दिया है, मैं जहां खड़े होकर इनकी सेवा करूं। मैंने एक आर्टिकल लिखा था कोविड-19 और इन बुजुर्गों की स्थिति क्या है। आर्टिकल के आखिर में मैंने अपने फोन नंबर दे दिए दोनों। आप हैरान होंगे मित्तल साहब कि मुझे 350 350 फोन आए। 10% फोन आए जिन्होंने अप्रिशिएट किया कि कम से कम आपने लिख दिया, नंबर तो दिया, हम आपसे कांटेक्ट कर सके। मैं एक दो एग्जांपल दूंगा कि फोन कैसे आए। एक फोन आया कि मेरी ऐनक टूट गई है, मैंने लेंस उठाकर आपका नंबर ढूंढकर आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ, अगर पॉसिबल हो तो मेरी ऐनक जो है वो बनवा दो। अब मैं होशियारपुर में बैठा हूँ, उसका फोन कटरा से आ रहा है। अब मैं, अगर मेरे दिल में वाकई इच्छा उस सेवा करने की, तो मैं वाकई उसको रास्ते को निकालूंगा। मैंने कटरा में अपने कार्यकर्ताओं को फोन किया, उस व्यक्ति का नंबर दिया, उन्होंने उनसे बात की, जाके उसका ऐनक ली और उसका फ्रेम लगाकर उसको ऐनक दी। अब बात बहुत छोटी, लेकिन इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा है। एक काम आपको ये करना है, ये ड्यूटी है आपकी समाज के प्रति, कि मुझे उन बुजुर्गों के पास जाकर हालचाल पूछना है। दूसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग को बार बार हम कह रहे हैं, तो क्या आप एज ए स्टूडेंट 2-4 बच्चों का ग्रुप बना के ये देख सकते हैं कि राशन की डिपो की दुकान है, वहां पर काफी लोग भीड़ में खड़े हैं, आप उनसे जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, देखिए भाई आपको भी कोरोना से बचना है और आपको बचाना भी है, तो आप 3-3 फीट के डिस्टेंस पे खड़े हो जाइए। उस दुकानदार को भी आसानी रहेगी और आपको लगेगा कि मैंने बहुत बड़ा काम जो है उस समाज का कर दिया। अगला जो काम है वो, क्योंकि फेस कवर नेसेसरी हो रहा है, तो फेस कवर क्या मैं खुद पहन के और कुछ फेस कवर मैं किसी को दे सकता हूं क्या? अगर ऐसा मन में विचार आता है तो आप बहुत बड़ा काम जो है उसका कर सकते हो। अगली बात जो मुफ्त में है, मैं सबसे पहले जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका एक बॉडीगार्ड सरकार ने आपको दे रखा है। आपको हैरानी होगी कि खन्ना साहब मेरे पास तो आया ही कोई नहीं बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड आपको सिर्फ बुलाना है। अपना मोबाइल उठाइए, आरोग्य ऐप को लोड कीजिए। आरोग्य ऐप आपका बॉडीगार्ड है। वो ऐप क्या है, जब भी कोई कोरोना का पेशेंट आपके पास आएगा तो आपको अलार्म आ जाएगा आपके मोबाइल के में कि आपके नजदीक कोई कोरोना का पेशेंट आया है, तो आप इमीडिएटली जो प्रिकॉशन आपको बताए गए हैं, हाथ नहीं मिलाना, हग नहीं करना, डिस्टेंस रखना, इमीडिएटली आप उस बातों को करेंगे तो आप उस कोरोना की चेन को तोड़ देंगे, ब्रेक करेंगे। आशा है कि आप आरोग्य सेतु ऐप जो है वो मैक्सिमम लोगों को बढ़ाएंगे। आज निश्चय कीजिए ना कि मैं
कम से कम 10 लोगों को आज आरोग्य ऐप के बारे में बताऊंगा और भरवाऊंगा, कल 10 भरवाऊंगा। अगर 93 पार्टिसिपेंट अभी हुए हैं तो 93 पार्टिसिपेंट फैसला कर लें तो इसका मतलब 900 ऐप आज लोड हो जाएगी। आपने बहुत बड़ा काम अपनी ड्यूटी के प्रति कर दिया। तो क्या आप कर सकते हैं? क्या ये भी मुफ्त का काम है? तो बहुत से काम ऐसे दिए गए हैं जो आपको मुफ्त में करने होंगे। ये आपका बॉडीगार्ड, हमारा टारगेट है 30 करोड़, अभी हम करीब 10 करोड़ के पास पहुंचे हैं। आज अगर हमारा नौजवान खड़ा हो जाएगा तो बहुत बड़ा काम जो है वो हम समाज का कर सकते हैं। दूसरी बात, जिस देश में हम रहते हैं उस देश में किन लोगों की पूजा होती है, जरा सोचिए। इस देश में उन लोगों की ही पूजा होती है जो जिन्होंने इस देश के या समाज के लिए त्याग किया। आप जरा ध्यान दीजिए अपने घर के ऊपर, या जिन घरों को आपने विजिट किया वहां, आपने कभी भी किसी घर में किसी अमीर आदमी की फोटो लगी देखी? नहीं, कभी नहीं देखी। अगर मान लो आपके घर में भी आपके किसी बुजुर्ग दादा की परदादा की फोटो लगी हुई है तो उसके ऊपर हार डाला हुआ है, तो आप इंट्रोडक्शन जरूर देंगे कि ये मेरे दादा थे, इन्होंने मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन कभी भी वो फोटो किसी पड़ोसी घर में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए जिए, अपने लिए मरे, अपने लिए उन्होंने काम किया। लेकिन जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, मैं एक दो नाम लूंगा। सरदार भगत सिंह, उनके नाम पे चौक है। स्वामी विवेकानंद, उनके नाम पे चौक है, यूनिवर्सिटी है, घर में फोटो है। तो इसके मतलब जो इस समाज और देश के लिए काम करता है उसकी ही फोटो, उसको ही लोग पूछते हैं, उसकी ही जयंती मनाते हैं, उसका ही जन्मदिन मनाते हैं, उसका ही हम लोग सब। तो फिर हमें क्या बनना है? हमें उस समाज के लिए कुछ करना है, ऐसा एक सोच के आगे बढ़ना है। और देखिए, मैं नौजवानों से एक निवेदन करूंगा, आप आज ही एक निर्णय लीजिए कि मेरा आइकॉन कौन है। मैं किस राष्ट्र नेता, किस देशभक्त को या किस राष्ट्रीय पुरुष को मैं अपना आइकॉन मानता हूं। उस आइकॉन को पहले आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उस आइकॉन को स्टडी कीजिए, वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचा उसके बारे में आप जब देखेंगे तो संघर्ष के बिना कोई भी कहीं नहीं पहुंचा होगा। फिर आप अपने आप को उस ढंग से तैयार कीजिए कि मुझे भी वैसा ही बनना है। उसके जीवन को अच्छी तरह पढ़िए, उसके जीवन की अच्छी बातें अपने जीवन में उतारिए। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप बहुत ही बड़ा काम इस समाज का कर देंगे। आइकॉन चुनने से पहले मुझे एक यहाँ पर घटना मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा कि स्वामी विवेकानंद, उन्होंने एक निश्चय किया था कि मैं गुरु उसको बनाऊंगा जो परमात्मा से जिसका सीधा संपर्क हो। तो ढूंढते 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 उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया। पहले उनकी भी परीक्षा ली, उनसे पूछा कि क्या आपने परमात्मा को देखा है? तो उन्होंने उनको बता दिया कि हाँ, मैंने परमात्मा को देखा है। उससे बात भी करवा दी, तब जाके उनको गुरु बनाया। एक दिन क्या देखते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जल समाधि लगाए बैठे। तो स्वामी विवेकानंद के मन में शंका हो गई कि अब जिसने परमात्मा को पा लिया उसको समाधि लगाने की जरूरत क्या है। जैसे ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस बाहर आए तो प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, आपने तो परमात्मा को पा लिया, अब समाधि लगाने की जरूरत क्या है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जो जवाब दिया, मैं आपसे निवेदन करूंगा उसको ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा, बेटा, ये जो मन है ना, ये मन में अच्छे बुरे विचार भरते रहते हैं। ये मन साफ रहे, इसलिए उस परमात्मा का ध्यान रखना, उसको ध्यान में लाना बहुत जरूरी है। अच्छी बातों के ऊपर हमें कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस मन की सफाई करना उस ढंग से है जैसे हम जिस बर्तन में दूध रोज डलवाते हैं, और अगर दूसरे दूध डलवाना हो तो उस बर्तन को अच्छी तरह धोते हैं ताकि दूध फट ना जाए। इसलिए अच्छी बातों को बार बार सोच के उनका अभ्यास करना, ये बात हमें अपने जीवन का हिस्सा बनानी पड़ेगी। दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या आता है?
एक बात, बहुत कुछ उसमें आ जाएगा। क्या मैं किसी का बोझ कम करने के लिए सक्षम हूं? क्या मैं किसी के दुख को कम करने के लिए सक्षम हूं? क्या मैं किसी के चेहरे पर हंसी लाने के लिए सक्षम हूं? आपको अगर सही मायने में को संतुष्टि लेनी है तो किसी दुखी आदमी के चेहरे पर हंसी ला देंगे तो आपको बहुत बड़ा काम जो है वो हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि जिंदगी में हम लोग 3 सिचुएशन से गुजरते हैं। अगर किसी को आपने डिफिकल्टी में देखा तो आपके पास 3 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन, देखा और इग्नोर किया। दूसरी सिचुएशन, देखा कहीं रिपोर्ट किया। तीसरी सिचुएशन है कि देखा और उसकी मदद की। जो लोग तीसरी सिचुएशन में काम करते हैं वो डेफिनेटली अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हैं। जो दूसरी में भी काम करते हैं वो कुछ ना कुछ ड्यूटी तो अपनी करते हैं लेकिन पहली सिचुएशन में कभी काम ना करते। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देना चाहता हूं। पहले आपने, मैं जैसे मेरा परिचय दिया गया था, मैं एमएलए भी बना हूं, एमपी भी रहा, राज्यसभा का, लोकसभा का। जब मैं एमएलए था तो मेरे गढ़शंकर से लेकर होशियारपुर तक जो सड़क थी वो बिल्कुल टूटी हुई थी, साइकिल चलना भी मुश्किल था। तो मेरे पास पहली जिम्मेवारी क्या थी? मैं असेंबली में उस क्वेश्चन को रेज कर, मैंने असेंबली में उस क्वेश्चन को रेज किया। जवाब आया कि सड़क का हाल बहुत बुरा है, जब पैसे होंगे तो हम इसको बना देंगे। अब मेरे पास सिर्फ सिचुएशन दूसरी पे काम किया, मैंने रिपोर्ट किया। तीसरी सिचुएशन जो थी वो सरकार की थी, लेकिन सरकार ने कंडीशन रख दी कि पैसे होंगे तब बनाएंगे। तो मैंने असेंबली में अनाउंस किया कि देखिए इस डेट तक अगर आपने ये सड़क नहीं बनाई तो मैं गढ़शंकर के बस स्टैंड पे बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करके पैसे इकट्ठे करूंगा और आपको दूंगा, तब बना दूंगा। अब मैंने तीसरी सिचुएशन में काम किया। तो दोस्तों, जैसे ही वो डेट आई, मैं बस स्टैंड पे बैठ के लोगों के जूते पॉलिश करने शुरू कर दिए। मेरे 13 दिन लगातार वो एजिटेशन चली और मुझे बताते खुशी हुई हो रही है कि तीसरे दिन सरकार ने उस सड़क को रिपेयर करना शुरू कर दिया। और जब तक 38 किलोमीटर की सड़क पूरी नहीं बन गई तो मेरे जूते पॉलिश करने का क्रम जारी रहा और 48,000 रुपीज, 48,000 रुपया इकट्ठा करके मैंने सरकार के खाते में भेजा। अब देखिए, मैं भी कोई एजिटेशन करता, 4 बसें फोड़ता, धरना देता, लेकिन वो सड़क शायद नहीं बनती। मैंने अपनी ड्यूटी को समझा कि मैं तीसरी सिचुएशन में काम करूंगा कि इस सड़क को बनवा के छोड़ूंगा। तो आज एक बहुत अच्छी वहां सड़क बनी है, लेकिन ये पुरानी बात है, 2002 की बात है। लेकिन आज मेरी उस जब मैं बायोडाटा अपना देखता हूं तो उसमें लगा है कि जूते पॉलिश करने वाला एक एमएलए जिसने जूते पॉलिश करके सड़क बना दी। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम लोग सामाजिक जीव हैं। माता पिता की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे पास, माता पिता का बहुत सारा इच्छा भी हमारे साथ है। तो मैं आपको निवेदन करूंगा, मेरी पहली ड्यूटी मेरे माता पिता के प्रति भी है, जिन्होंने मुझे पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया। मैं उनका भी कुछ बोझ हल्का करूं, उसके लिए काम करूं। और सबसे बड़ी ड्यूटी मेरी समाज और देश के लिए है, जिसके लिए मैं काम करूं। आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप रोज अखबार पढ़ते होंगे, आप रोज टीवी देखते होंगे, रोज आप अखबार में पढ़ते होंगे कि कितने कितनी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही। अब आपने पढ़ी और कहा दोस्तों ये बहुत बुरा हुआ और अखबार छोड़ दी, आप भूल गए। क्या आप उस न्यूज जो आई है अखबार में, जहां आपने कहीं भी ह्यूमन राइट वायलेशन देखी है, आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि उस बात को ह्यूमन राइट कमीशन तक पहुंचाना। बहुत आसान ढंग है, मैं मेंबर रहा हूं इसलिए मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप बहुत बड़ा काम, आप वकील भी हैं, कल को आपने लोगों के राइट्स को डिफेंड भी करना है, तो आप एक सिंपल पत्र जो है वो लिखकर ह्यूमन राइट कमीशन को भेज दीजिए कि ये समाचार पत्र जो है ये अखबार में छपा है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल में पानी नहीं है, बहुत सी ऐसी बातें
जो न्यूज़पेपर में आती हैं, जो आपके संज्ञान में आती हैं, ध्यान में आती हैं, आप सिंपल उसकी कटिंग करके आपका खर्च 5 रुपए आएगा, जो स्टैंप लगनी है, ह्यूमन राइट कमीशन में जाएगी। तो जब उसका निवारण होगा तो आप एक बहुत बड़े योद्धा के रूप में, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के रूप में सामने आएंगे कि मैंने अपनी लाइफ में ये समस्या को हल किया। आप सिंपल देखते रहेंगे, ऐसा मत कीजिए। आप आगे बढ़ के काम करेंगे, ऐसा आप बनिए। तो 3 सिचुएशन में आप काम कर सकते हैं। आकाश और रमन जी, ये दोनों बात सुन रहे हैं, मेरा इनसे निवेदन है, क्या करना है हमें। आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज हर जगह लिखी हुई है, राइट टू क्लैरिटी, राइट टू स्पीच, एवरी जब लिखा हुआ है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स सब जगह लिखे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत कम लोग जानते हैं। एज ए लॉ स्टूडेंट, एज ए लॉ टीचर, एज ए प्रोफेसर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये 11 पॉइंट्स एक फ्लैक्स बनाकर, एक बोर्ड बनाकर अपने कॉलेज में, अपने डिपार्टमेंट में लगाएंगे तो लोगों को याद आ जाएगा, ध्यान आ जाएगा कि हम लोगों की ड्यूटीज क्या है, संविधान में हमें ड्यूटीज क्या दी गई है। इसके लिए मुझे आशा है कि जब आप जवाब देंगे तो या लास्ट में बोलेंगे तो इसका प्रॉमिस आप मुझसे करेंगे कि हम कल से ही एक फ्लेक्स बनाकर फंडामेंटल ड्यूटीज का लगाएंगे। बहुत बड़ा मैसेज जो है वो चला जाएगा। लास्टली मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया संकट में है। सारे लोग भारत की तरफ देख रहे हैं और भारत एक योद्धा के रूप में सामने आया है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि उस चिड़िया की तरह मेरी भी कोई कंट्रीब्यूशन रहे, मैं ऐसा काम कर सकूं, उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। ज्यादा समय न लेता हुआ, और मुझे आशा है कि कुछ बच्चे क्वेश्चन भी पूछना चाहेंगे, उनके क्वेश्चन का भी मैं जरूर जवाब दूंगा। ये एक मौका मिला है हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस करके कि अपने जीवन के एक्सपीरियंस मैं आपको बता सकूं। मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूं कि जो मैंने आपको बताया सिचुएशन के बारे में कि 3 सिचुएशन होती हैं। सुबह रोज सैर करने जाते हैं, एक दिन बहुत अंधेरी चली, एक दरख्त रास्ते में गिर गया, तो लोग खेतों में से होके जा रहे थे। तो मैं और मेरा दोस्त और मेरा एक सिक्योरिटी गार्ड, हम तीनों लोग जब वहां पहुंचे तो मैंने अपने दोस्त को कहा, यार इसको उठा के अलग ना कर दें। उसने कहा ये बहुत भारी है। तो मैंने कहा कोशिश करने में क्या हर्ज है। जैसे हमने तीनों लोगों ने जोर से उठाया, उठा के साइड पे कर दिया, तो इतनी खुशी हुई तीनों को। वो बिजनेसमैन है, तो उसने आके घर में बात बताई, अपने दोस्त फ्रेंडली सर्कल में बात बताई, देखिए हम लोगों ने आज रास्ते में से एक दरख्त को उठा के साइड पे कर दिया, लोग आराम से वहां से निकलने शुरू हो गए। ऐसी बात करनी चाहिए जो बात आप सबको बता सकें। कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसको आपको अपना मुंह छुपाना पड़े, जाग उसको बता ना सके। हमें उस देश के लिए काम करना है, उस समाज के लिए काम करना है। हमारा इंतजार समाज कर रहा है कि कुछ नई पीढ़ी के लोग उठेंगे, हमारी इस चिंता को, हमारी इस जरूरत को वो कम करेंगे और हमें खुशियां बांटेंगे। आपको भी मजा आएगा, आपको भी जीने का मजा आएगा, और जिसके साथ आपने खुशियां बांटी है, जिसको जिसको खुशी दी है, उनको भी मजा आएगा। मेरा इतना कहना था, और मेरा आशीर्वाद बड़ा होने के नाते उन सबको है जो मेरी बात सुन रहे हैं कि इस टॉक के बाद हम लोग एक नई दिशा में काम करेंगे। बहुत करते होंगे, और जो मैंने बात कही इससे भी अच्छा करते होंगे, लेकिन कभी भी निराशा नहीं अपने मन में लानी। केवल ऐसा लगता है कि मेरे काम का कोई पहचान नहीं कर रहा, डेफिनेटली कर रहा है। जो देखता है, देखने वाला देखता है, जब मौका मिलेगा वो उसका रिजल्ट आपको जरूर देगा। कम से कम आप अच्छा काम करके बहुत सी बुराइयों से आप बच रहे हैं। सबसे बड़ी ड्यूटी है पहले अपने आप को अच्छा रखना, अपने आप को बचाना। फिर मेरी ड्यूटी है किसी की मदद करना। जब ये बात आपके मन में आ जाएगी ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती। दुनिया में आप जब भी कहीं जाएंगे, एक एडवोकेट रूप में जाएंगे,
वहां भी एक इंसान के नाते आप काम करेंगे। एक जज के रूप में जाएंगे तब भी एक इंसान के नाते काम करेंगे। अगर आईएएस आईपीएस बनेंगे तब भी आपके मन में जो आपका विचार आज आ गया है अच्छा, उस समय आप डिलीवर करेंगे, डेफिनेट डिलीवर करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग जितना कंट्रीब्यूशन कर सकें उस चिड़िया की तरह जरूर कीजिए। इतनी बात कहता हुआ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर. So we have few question from the participants. So the question is from first is from Bharat. What is the fundamental duty of students in this situation? आकाश ऐसे करो, हाँ जी सर. सबके क्वेश्चन आने दो, मैं फिर जवाब इकट्ठा दे दूंगा, ठीक है ना? ठीक है हो सर. सकता है कि कॉमन हो। सर क्वेश्चंस ठीक है सर. उनको अनम्यूट कर दो ना जिन्होंने सर एक्चुअली वो पूछना है। अनम्यूट नहीं होंगे. आई कैन आस्क यू द क्वेश्चन सर. वो मैसेज पे डिस्प्ले हो गए हैं मुझे सब ना. अच्छा अच्छा, ड्यूटीज ऑफ स्टूडेंट। हाँ जी. इन दिस सिचुएशन सेकंड सर एक क्वेश्चन है. Sir, don't you think fundamental duties should be made mandatory? No right would be given if duties are not fulfilled. Also, duties must be amended. और So these two questions are there with us right Okay. now. मैं समझता हूं कि दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं स्टूडेंट हूं, मैंने पहले कहा ना, आप अपने आप को चिड़िया की उस में ले आइए। मैं क्या कर सकता हूं? क्या मेरे पास समय है? मैं कुछ बस्ती में जाकर बच्चों को पढ़ा सकता हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं गढ़शंकर रहता था तो होशियारपुर प्रैक्टिस करता था। होशियारपुर से आने के बाद बस स्टैंड के साथ ही एक झुंगी झोपड़ी थी, तो वहां पर रैग पिगर्स बच्चे जो थे वो रहते थे बहुत देर से। तो मेरे मन में आया कि इन बच्चों को क्यों ना पढ़ाऊं मैं। तो मैं 6 बजे मेरी बस आती थी, तो उस बस में उतर के मैं उन बस्ती में जाकर 1 घंटा उन बच्चों को पढ़ाता था। एक चेंज उनमें आई बहुत बड़ी। एक दिन मेरे पिताजी मंदिर को जा रहे थे, रास्ते में बस्ती पड़ती थी, तो मुझे कहने लगे, अविनाश आज जिंदगी में पहली बार, मैं 47 से इस मंदिर में जा रहा हूं, आज पहली बार मैं देखा कि वहां बस्ती के बच्चे निकले और पैरी हाथ लगा के फिर वापस चले गए। उनको एक रिस्पेक्ट करने का जो मैसेज था हम दे पाए। वो जब भी मैं जाता नमस्ते कहते, उनको दुनिया के बारे में कुछ पता चला, अपनी हेल्थ के बारे में पता चला, मैं साफ सुथरा कैसे रहूं वो पता चला। एज ए स्टूडेंट सबसे पहली जिम्मेवारी है अपने टीचर की रिस्पेक्ट करना। जो बच्चे अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं वो बच्चे दुनिया में कभी फेल नहीं हो सकते। और टीचर आपके लिए इतना कुछ सोचता है, मैं ये आपको बता नहीं सकता, कि आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट कीजिए और कुछ छोटी बहुत कंट्रीब्यूशन जैसे मैंने बताया वो आप कर सकते हैं। इस कोरोना के टाइम पे आप लोग जो हैं, वो जो मैंने आपको कहा कि आप लोग अवेयर करिए लोगों को कि कैसे कोरोना से बचना है, बिना दवाई के क्या इलाज है, इसके बारे में कैंपेन चला सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए आप अपनी बात कर सकते हैं। तो ये काम आप अपने वहां बैठे भी कर सकते हैं। दूसरा है मैंडेटरी बनाने की ड्यूटी, जो है वो इम्पोज नहीं की जा सकती, वो अपने आप उसको करना होगा। आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए कि मुझे को कहे ना, मैं ड्यूटी करूं। समय आएगा, देखिए मैंडेटरी कानून तो बहुत बनते हैं लेकिन वॉलेशन करने वाले भी बहुत आ जाते हैं। ये ड्यूटीज जो हैं वे सेल्फ इम्पोज्ड होती हैं। ये सेल्फ इम्पोज्ड जो ड्यूटीज होती हैं ये ज्यादा इफेक्टिव होती है। अभी किसी का मैं मैसेज पढ़ रहा था, उसने लिखा, क्या पॉलिटिशियन की कोई ड्यूटी नहीं है? बहुत बड़ी ड्यूटी है पॉलिटिशियन की। मैं भी एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं एमएलए एमपी और मैं लोकसभा राज्यसभा का मेंबर रहा हूँ, ह्यूमन राइट कमीशन में मैंने काम किया है। सबसे बड़ी ड्यूटी मेरी इसलिए है कि मैं एक चुना हुआ नुमाइंदा हूं, तो मेरी अपनी कंस्टिट्यूएंसी के प्रति
बहुत सारी ड्यूटीज हैं। मैंने बूट पॉलिश वाली आपको बात कही ना, मैंने इसलिए सुनाई आपको। अगर सब पॉलिटिशियन ऐसा सोचना शुरू कर दें, लोग हमें देखते हैं, कोई ये मत सोचे कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है। अगर अच्छा काम करते हैं, लोग आपको फॉलो भी करते हैं। अगर मैं कुछ अच्छी बात करूंगा तो डेफिनेटली मैं उस बात को कहने के लिए कॉम्पिटेंट हूंगा कि आप भी अच्छी बात कीजिए। अगर मैं अच्छी बात नहीं करूंगा तो आप मान के चलिए कि मैं आपको नहीं कह सकता कि आप ये बात करें। अगर मैं कहूंगा भी, उस बात का इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूं और आपको कहूंगा ठीक बात कीजिए, मेरी बात का इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं होगा। मैं इसको एक एविडेंस के साथ आपको समझाना चाहता हूँ। एक बार ना एक संत थे, उनके पास एक माता अपने बच्चे को लेके चलेगी तो और कहने लगी कि महाराज, ये बच्चा जो है ये गुड़ बहुत खाता है। तो महाराज ने कहा कि बेटे इसको अगले हफ्ते लेके आना। वो अगले हफ्ते लेके चलेगी। फिर उसने कहा कि नहीं बेटे अगले हफ्ते लेके आना। वो फिर अगले हफ्ते गई। 15 दिन बाद उस संत ने कहा कि बेटे गुड़ मत खाओ। उसको बड़ा गुस्सा आया कि महाराज ये बात तो आप उसे भी कह सकते हो, तो एक तो शब्द बोलना था गुड़ मत खाओ। तो महाराज ने कहा कि तब मैं गुड़ खाता था, 15 दिन मैंने प्रैक्टिस की, मैंने गुड़ खाना छोड़ा, तब मैं इस सिचुएशन में आया हूं कि कह सकूं कि गुड़ मत खाओ। अगर आपका जो इसको फॉलो करना चाहते हैं, अगर सच मैंने में वो जो जीवन में अपनी बात कह करो मनवाना चाहता है, वो अपने जीवन में खुद उस बात को उतारे, तब वो कह पाएगा। इसीलिए नेताओं ने अपनी रिस्पेक्ट छोड़ दी है। आज नेता शब्द कई बार मैं भी फील करता हूं कि वो रिस्पेक्ट वाला शब्द नहीं रहा। आगे ये शब्द बहुत रिस्पेक्ट वाला था। क्यों? कि हमारे नेताओं ने इस देश की आजादी के लिए बहुत काम किया। हमारे नेताओं ने, अब देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी का एग्जाम्पल लीजिए। उन्होंने, एक बार मुझे उनके बेटे के साथ बैठने का मौका मिला तो उसके बेटे ने बताया था कि मेरा मन किया कि क्यों ना मैं पीएम की गाड़ी में जाकर फिल्म देख के आऊं। चले गए। जब वो वापस आया तो उसने कहा कि ये गाड़ी लाल बहादुर शास्त्री की नहीं, प्राइम मिनिस्टर की है, आप इसमें क्यों बैठे? तो ड्राइवर को कहा, उसको भी गुस्से हुए। तब उन्होंने कहा कि इसका मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि साहब इसमें प्रोविजन है कि अगर पीएम किसी प्राइवेट काम के लिए गाड़ी यूज करता है तो इतने किलोमीटर के हिसाब से वो पैसे दे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी जेब से वो पैसे कटवाए। इसीलिए वो एक ऐसे नेता बने जिसकी बात लोग सुनते थे। उन्हीं के कहने से एक दिन का व्रत लोगों ने रखना शुरू कर दिया था। आज वो नेता नरेंद्र भाई मोदी के रूप में हमें मिला है। उनके कहने से आपने तालियां बजाई, थालियां बजाई, जनता कर्फ्यू भी लगाया, कोरोना वॉरियर्स को दीप जलाकर आपको सम्मान किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिस्पेक्ट कमाई है, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। आज नेता कहलाना और बनना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। नेता बन तो 1,000 रुपए का फ्लैक्स लगा दो आप, बड़ी सी फोटो ऐसे हाथ रख के दिखा दो आप, मैं सबको नमस्कार करता हूँ, लोग समझे नेता बन गया। वो बना, लेकिन लोगों के मन में नेता वही बनता है जो देश और समाज और लोगों के समस्याओं के साथ खड़ा होता है और उनकी बात करता है। Sir, one more question from Anjali Tayal. Sir, when I see that the people are not vigilant about our environment, and when I stop anyone, they usually reply, "Everyone is doing the same." It is very disheartened. What we can do this in this field? देखिए, मेरी सारी टॉक का एक ही विषय रहा, आप अच्छा काम करने से मत रुकिए। एक ना एक दिन, देखिए ऐसे लोगों को एक कहानी, कई बातें लड़ना नहीं समझाना होता है। एक ना ऐसे बातों के लिए कई बार कुछ वीडियोस आते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आते हैं। तो एक बार कुछ लोग ना दरख्त काटने चले गए, 10-15 मिनट दरख्त काटा, बहुत गर्मी हो गई। तो उन्हें कहा कि हम लोग थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। उस दरख्त के नीचे बैठ के आराम करने लगे। तो एक के मन में आया कि हम इस दरख्त को काटने आए हैं और आराम भी इसके नीचे कर रहे हैं। एकदम प्रेरणा मिली कि ये जो छाया देता है, हमें नहीं काटना चाहिए, तो दरख्त नहीं काटा। ऐसे छोटी सी जब बात आए तो दूसरे दिन ऐसी छोटे सा क्रिएटिव लेके वहां रखाएं कि इसको पढ़िए, फिर मन बनाइए। So where there is a conflict between right and duties,
which will prevail? मैंने कहा ना, राइट्स जो हैं वो तब वायोलेट होते हैं जब ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करते हैं। हमें अपनी ड्यूटी को नहीं भूलना चाहिए। अगर ड्यूटी नहीं भूलेंगे तो राइट्स अपने आप आपके परफॉर्म होने शुरू हो जाएंगे, आपको राइट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। मान लो माता पिता की हम कहना नहीं मानते, उनकी सेवा नहीं करते, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि माता पिता का ये मेरा ये राइट है, मेरी प्रॉपर्टी का राइट है, मेरा वो राइट है। आज देखिए भारत जैसे देश में हमें ये कानून बनाना पड़ा, और मेरा भाषण है उसके ऊपर कि वी आर टू मेंटेन अवर पेरेंट्स। आज हम डीसी के पास एक एप्लीकेशन देते हैं ना कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते और मैंने प्रॉपर्टी दी है ये वापस की जाए, ऐसी बात करते हैं ना। तो ये तो मेरा बेसिक, जब पैदा हुआ तब ही मेरी ड्यूटी थी कि अपने माता पिता का कहना मानूं, उनकी ड्यूटी करूं। सो ड्यूटी इज मस्ट, और हमें अपना फर्ज जो है वो पूरा करना चाहिए। राइट्स अपने आप मिलते रहेंगे। अगर आपने अपनी ड्यूटी नहीं की तो राइट कैसे मिलेंगे? There is one more question from Dipanshu Mehra. Fundamental duties is a moral obligation. Don't you think there is lack of value system in the society? That's why we don't follow these duties. How we improve value system? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर एजुकेशन में और अपने व्यवहार में वैल्यूज की बात होने लग जाए तो मेरा ख्याल है कि हमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैल्यूज है क्या? देखिए, हर आदमी का अपना एक कैरेक्टर है। एक हम लोग पढ़ते हैं कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। सो कैरेक्टर को इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। वैल्यूज भी कैरेक्टर के साथ अटैच है। हम चाहे उसको मॉरल कैरेक्टर कहें, चाहे किसी भी संस्था के साथ जुड़े हुए कैरेक्टर की बात कहें। आप टीचर हैं, आपकी ड्यूटी क्या है भाई? आपकी ड्यूटी है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं मेरे विद्यार्थी पूरा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। आप सारी क्लास में नजर रखते हो, आकाश आपको पता चल जाता है कि कितने लोगों ने मेरा लेक्चर समझा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई क्वेश्चन पूछता नहीं बच्चा, उसके दो मतलब है। पहला मतलब कि या तो बच्चे पूरी बात समझ गए, या बच्चों ने कोई बात समझी नहीं। अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब आपने बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर दिया है और लोगों में क्यूरियोसिटी है कि इस बात को और थ्रैश किया जाए, इसमें से और बातें निकाली जाए। इसीलिए मेरा कैरेक्टर, मेरी उस समय कह लो कि ड्यूटी क्या है कि मैं अच्छी तरह पढ़ाऊं। अगर मेरी बात को बच्चों ने नहीं समझा, घर जाके मैं फिर उस चैप्टर को रीस्टडी करूं कि मैं इस बात को किस ढंग से, आसान ढंग से समझा सकूं। ये मेरी ड्यूटी है। आज वैल्यूज कहीं ना कहीं, बहुत अच्छा पूछा उसने क्वेश्चन, आज वैल्यूज जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हट गई। आज हमारा जो मतलब है, आज हम देश के साथ भी वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। अगर मेरा देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। अगर मैंने टैक्स चोरी किया वो भी हम गलत काम कर रहे हैं। अगर हमने किसी का पैसा खाया वो भी काम। आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वैसे मुझे बतानी चाहिए, आपने वैल्यू की बात की है, वैल्यू है क्या? मैं जिस सिस्टम से आगे बढ़ा हूं वो है आरएसएस, संघ की शाखा। मैं उससे आगे आया हूं। हमेशा हमें बताया गया है कि हमें ईमानदारी से काम करना होगा। और जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मैंने 3 चुनाव लड़े हैं, 2 एमएलए के 1 एमपी का। 3 के 3 चुनाव में मुझे पैसे बचे और मैंने सारे पैसे वो पार्टी को, मेरे तीनों चुनाव में कोई पैसा खर्च नहीं आया, सब पैसा जनता ने खर्चा। अगर आज कोई बात नहीं कहता कि चुनाव में मेरा पैसा नहीं लगा, और मैं हर जगह अपने भाषणों में कहता हूं मैंने 3 के 3 चुनाव में कोई पैसा खर्च नहीं किया और जो पैसा बचा वो मैंने वापस किया। ये वैल्यूज है। ये कहां से सीखी मैं? आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि ये मैंने काम किया। और एक छोटा सी उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आपके कॉलेज में ये बात हो जाए, बहुत अच्छी बात है।
पंजाब में खन्ना के पास एक गांव है, आपने नाम सुना होगा, पिंगलवाड़े जो वाले संत जो हैं उनका, जिनका अमृतसर में पिंगलवाड़ा चलता है, उनका गांव है। उनके नाम से ही वहां स्कूल चलता है। मुझे वो ले गए स्कूल में। जब मैंने राउंड किया तो एक जगह जाके मैं रुक गया। एक टक शॉप थी, उस टक शॉप पे ऊपर लिखा हुआ था शॉप ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी की दुकान। मैं खड़ा हो गया, देखने लगा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात थी। तो दूर खड़े देख रहे हैं, बच्चे आते हैं, अपना कोई सामान उठाते हैं, एक बॉक्स लगा हुआ है, उसमें पैसे डालते हैं, चले जाते हैं। कुछ बच्चे आते हैं, वो उनके पास पैसे नहीं है, एक बॉक्स के नीचे पर्ची निकालते हैं, नाम लिखते हैं, क्लासरूम लिखते हैं और अमाउंट ऑफ दी गुड्स वो लिखते हैं और पर्ची दूसरे बॉक्स में डाल देते हैं। कुछ बच्चे आते हैं, पर्ची निकालते हैं, फाड़ते हैं, पैसे दूसरे बॉक्स में डाल देते हैं। कोई सेल्समैन नहीं, कोई सुपरवाइजर नहीं, कोई पीएन नहीं। तो मैंने प्रिंसिपल को पूछा कि आपको इस दुकान चलाने में कितना घाटा हुआ है साल? इंटरेस्टिंगली 3 साल से दुकान चल रही थी वो। उन्होंने कहा एक पैसा भी हमें घाटा नहीं हुआ। तो मैंने कहा डब्बों का सिस्टम क्या है? उन्होंने कहा एक है कैश का डब्बा, इसमें लोग बच्चे अपना प्राइस पढ़ते हैं, पैसे डाल देते हैं। दूसरा है क्रेडिट, उधार का डब्बा, बैग, अपना बॉक्स, बच्चे प्राइस पढ़ते हैं, स्लिप लिखते हैं पैसों की, उस बॉक्स में डाल देते हैं। और जो बच्चे पैसे देना चाहते हैं वो अपनी पर्ची उतारते हैं, पाड़ते हैं और उस बॉक्स में डाल देते हैं। ऐसी उदाहरण कहीं देखी है आपने? उन बच्चों को वैल्यू सिस्टम वहीं से सिखाना शुरू कर दिया। इसीलिए मैंने कहा पहले शुरू में ही कि आप एक अपना आइकॉन बनाओ, उस आइकॉन को बनाकर उसको स्टडी करो, और स्टडी करने के बाद उन्होंने कितनी यातनाएं सही हैं और कहां तक पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचने का आप प्रयास करें। Sir, one more question from Suraj Mohan. Why the attitude is ignored and emphasis is laid on the fundamental rights? How this attitude is generated in our public representatives? How can we make these duties as appendix to our national anthem? अगर आपने पढ़ी है, इसमें नेशनल एंथम के बारे में भी लिखा है। उसमें क्या लिखा है? to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, national flag and national anthem. It is our duty to respect the national anthem. आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में खास तौर पे जब डिग्री डिस्ट्रीब्यूट होती है तो चीफ गेस्ट और गेस्ट वो सिर्फ खड़े होते हैं नेशनल एंथम के लिए, लेकिन बहुत से बच्चे नेशनल एंथम के लिए नहीं खड़े होते। अब इस सिचुएशन में आपके साथ पास कुछ सजेशन है कि क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के पास साथ, तो मुझे जरूर दीजिए, कहीं ना कहीं इस चर्चा में रख के इनको आगे लाने की कोशिश करें। So one last question from Neha Katyal. Nowadays, our government is doing well for everyone and they provide essential things to everyone on time. Then why laborers move from one state to another? As you watched news yesterday, there was a rush in Bandra, Mumbai. It is a very sad part of our life. इतनी बड़ी मूवमेंट माइग्रेंट्स की, माइग्रेंट लेबर, माइग्रेंट्स तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ये नेहा का क्वेश्चन लेबर के ऊपर है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्लियर कट गाइडेंस इशू की थी। उन्होंने कहा लेबर एक जगह से जाना चाहती है, दूसरी जगह आना चाहती है। एक रिसीविंग स्टेट है और दूसरी भेजने वाली स्टेट है। दोनों स्टेट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके जितनी लेबर को भेजना है और जितना उन्होंने रिसीव करना है, ये लिस्ट एक केंद्र सरकार को दे दें और केंद्र सरकार जो है वो उतनी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर दे। आपने देखा श्रमिक ट्रेन चली, कुछ बसें चली। मैं इसको पॉलिटिक्स के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहता, ये ह्यूमैनिटी के साथ जुड़ा हुआ विषय है। आज इस समय में हर व्यक्ति अपने घर में जाना चाहेगा, ये उसका एक मनोस्थिति है, उसका मन है कि जाना चाहिए। फैसिलिटेट करने का काम सरकारों का है, कुछ ऑफिसर्स की ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है उनको फैसिलिटेट करना।
लेकिन सैड पार्ट क्या है कि मिसमैनेजमेंट इतनी हुई, कुछ लोगों ने अफवाहें उड़ा दी, कुछ लोगों ने इतना मिसमैनेजमेंट किया कि अगर 1000 की कैपेसिटी है ट्रेन में, तो वहां पर 10,000 लोगों को आने के लिए भेज दिया। तो ये बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ। लेकिन मैं आपको नेहा बताना चाहता हूं कि मेरी पार्टी ने मुझे क्या आदेश दिया है और हमने सबको क्या आदेश दिया है कि जितने भी लोग पैदल जा रहे हैं, पहले तो वो जाए ना, अगर जा रहे हैं हम रोक नहीं सकते, तो आप अगर आपको रास्ते मिलते हैं तो उनको वहां भोजन लेके जाइए, उन्हें ठंडी जगह बिठाइए, पानी पिलाइए, अगर उनकी चप्पल बूट खराब हो गए हैं वो उनको प्रोवाइड कीजिए। अगर आपके पास फैसिलिटी है तो आप उनका 20, 25, 50 किलोमीटर का सफर उनका तय करवा दीजिए, आगे उनको छोड़ के आइए और अगले स्टेशन पर आप सूचना दें कि इतने मजदूर पैदल चले हुए हैं, आप इनका अरेंजमेंट कर करिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि मेरा परिचय भी आया है, मैं तो छुपाना नहीं चाहता, हम इस लेवल पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके कंसर्न के साथ सहमत हूं, ये बहुत ही दुखदाई घटना है, बहुत ही दुखदाई घटना है। मैं समझता हूं कि मेरा सिर भी शर्म के साथ झुक रहा है कि वो लोग जो मेहनत मजदूरी करने के लिए अपने घर से निकले थे, आज आप विस्तारित होकर वो अपने घर को जा रहे हैं। सारे समाज का, सारे देश की जिम्मेवारी है कि उनको सकुशल अपने घर के पहुंचाए। अच्छा है, आपने, आपके पास बहुत उदाहरण भी होंगी, वो उदाहरण भी आप देना चाहती होंगी, लेकिन मैंने उनका दर्द देखा भी है, सहा भी है। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ बेटे। एक स्टूडेंट का भी मैसेज था कि हमें क्या करना चाहिए। सुबह शाम को मेरे पास 2 लोग आए, मजदूर थे, कि या तो हमें पटना भेज दीजिए, 2 दिन से भूखे हैं हम लोग, या हमारे खाने का अरेंजमेंट कर दीजिए। 15 लोगों का खाने का इंतजाम करना आप समझ सकते हो। मैं सुबह, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी मदद करूंगा। सुबह मैं और मेरी वाइफ उठे, हमने 15 लोगों के लिए सुबह 6 बजे उठकर चावल बनाए और अपने बेटे को भेजा उनके पास कि इतना खाओ, बाकी मैं इंतजाम करता हूँ। दोपहर को फिर कुछ लेकर मैं गया, उनको दिया और फिर सरकार को कहा कि इन लोगों का इंतजाम करें। ये आप जितना कर सकते हैं आप कर सकते हैं और कीजिए, बहुत मजा आएगा। ये बात मैंने बताना नहीं चाहता था क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आया है कि इसलिए मैंने उस बात को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। Thank you, sir, for patiently answering each and every question of the students. And sir, now I would like to conclude this session by giving vote of thanks on the behalf of Campus Law Center. आकाश, मेरी बात सुनना, मतलब मैंने कहा ना फंडामेंटल ड्यूटीज का एक फ्लैक्स बोर्ड बना के आपके डिपार्टमेंट व्यू लगाओगे, जो बात भी मुझे अश्योर कर देना। Raman sir, over to you. This is a promise. This is a promise from my side to you, sir. We will definitely do it as soon as the lockdown is over. We will do it. आकाश जी, आपको ये ड्यूटी ले लेनी है और ये करना है हमने, ठीक है? और मैं, और I'll assure you, you will see the difference within 6 months. How the students are acting and reacting. बिल्कुल सर, definitely. Definitely, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. So I would like to thank Shri Avinash Rai Khanna ji for his valuable presence and for sharing his extraordinary views on the crucial aspect of fundamental duties in the Indian society. Sir, you focused upon the fundamental duty to defend the country and render duties when called upon. Sir, you also shared your personal experience and various examples of the current situation and duties of citizen in the COVID-19 situation. Sir, you highlighted the incident of Swami Vivekananda also. So you have given us a very fruitful suggestion of displaying the fundamental duties in our department. And sir, I, on the behalf of Campus Law Center, along with Raman sir, assure you he will definitely put the board of fundamental duties in our department. I wish to thank our professor in charge, Professor Dr. Raman Mittal sir, for his immense support and guidance in organizing this event. I would like to thank my colleagues and all the participants for joining with us today. And now I would like to end the session. Thank you all for being with us. Thank you, sir. Thank you, sir. नमस्कार सबको, मेरा नमस्ते। Thank you, sir.